السلام علیکم پیارے دوستو، خوش آمدید ایم اے سٹوری سینٹر میں، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسی وادی کی طرف جہاں ایک ندی ہے، مگر سوکھی ہوئی، خاموش، ویران، اور ایک مچھیرا ہے جو بولتا نہیں مگر دل سے جیتا ہے۔ اس کہانی کا نام ہے خاموش مچھیرا اور ندی کا راز۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ پہلی سرگوشی جو ایک ندی کی گہرائی سے نکلی اور ایک خاموش دل نے سن لی۔ یہ وادی برسوں پہلے جنت کہلاتی تھی۔ ندی بہتی تھی جیسے کسی بزرگ کی دعا، پرندے گاتے تھے جیسے تسبیح کے ہار، اور لوگ مسکراتے تھے جیسے رزق کبھی رکتا نہیں۔ مگر اب ندی سوکھ چکی تھی، پرندے جا چکے تھے، زمین پیاسی تھی اور آسمان خاموش۔ اسی وادی میں ندی کے کنارے ایک پرانا ٹوٹا ہوا جال پڑا تھا، اور جال کے پیچھے ایک جھونپڑی جس میں رہتا تھا بابا حلیم۔ بابا حلیم ایک خاموش مچھیرا، وہ نہ بات کرتا، نہ شکایت، نہ مانگتا، نہ روکتا۔ روز صبح فجر سے پہلے اٹھتا، جال اٹھاتا اور ندی کے بیچ جا کر بیٹھ جاتا، پھر گھنٹوں تک بغیر کچھ کہے جال پانی میں ڈال کر بیٹھا رہتا۔ حالانکہ وہاں اب پانی تھا ہی نہیں۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ ندی خشک ہے بابا، اب مچھلی نہیں، صرف مٹی ہے، یہ کیا نفع ہے روز آنے کا؟ مگر وہ کچھ نہیں کہتا، بس ایک دھیمی مسکراہٹ اور آنکھوں سے آسمان کی طرف ایک نظر، جیسے کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان جو قحط سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑنے والا تھا، اس کے قریب آ بیٹھا۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ بابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ندی میں کچھ نہیں تو تم جال کیوں ڈالتے ہو؟ بابا حلیم نے جال سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا، وہ سیاہ تھا پر ہلکا سا چمک رہا تھا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، صبر۔ نوجوان نے حیرت سے دیکھا، یہ کہاں سے آیا؟ بابا نے صرف ندی کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو وہی لائی ہے۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن سے وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ جال اب بھی خالی آتا، مگر دونوں بیٹھے رہتے۔ ندی کے کنارے اب بھی گھاس نہیں تھی، مگر خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو روح کو تھامتا تھا۔ پھر ایک دن بابا نے ندی کے اندر ایک خاص جگہ پر جال ڈالا، جہاں ایک پرانا پتھر کا دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے کوئی چھپی ہوئی جگہ ہو۔ جال نیچے گیا، اور اس بار واپسی میں صرف کیچڑ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا سکہ جس پر عجیب سی تحریر تھی، واپسی کا وقت قریب ہے۔ نوجوان نے وہ سکہ تھاما، آنکھوں میں چمک تھی۔ بابا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ندی کچھ چھپا رہی ہے؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار بہت ہلکی آواز میں کہا، یہ ندی خاموش ہے، مردہ نہیں۔ پہلی بار بابا نے کچھ بولا تھا۔ ندی کی مٹی میں ہلکی نمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ فریب تھا، یا شاید دعا کا پہلا اثر۔ اسی رات گاؤں کے سربراہ نے اعلان کر دیا، ندی کو بند کر کے زمین کھود لی جائے، اب وہ ہمیں کچھ نہیں دے گی۔ لوگ خوش ہوئے، فصل اگے گی، بھوک مٹے گی، مگر بابا حلیم بس خاموش رہا۔ وہ اگلی صبح بھی ندی پر آیا، جال اٹھایا اور وہی دائرہ تلاش کرنے لگا۔ پانی نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا ندی بولے گی، بس وقت چاہتی ہے۔ اسی لمحے ندی کی تہہ سے ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ بابا کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کچھ بولتی سی محسوس ہوئی۔ نوجوان نے چلا کر کہا، بابا، نیچے کچھ ہے؟ بابا نے آنکھیں بند کر کے زمین کو چھوا اور زیر لب کچھ کہا، شاید دعا، شاید سلام۔ ندی اب بھی خاموش تھی، پر وہ خاموشی اب خوفناک نہیں لگتی تھی۔ وہ خاموشی ایسی تھی جیسے
कुछ आने वाला हो। सुबह की किरणें अभी पहाड़ों के पीछे छपी हुई थीं, लेकिन नदी के किनारे बाबा हलीम हसन मामूल बैठा था। इसकी झुर्रियों भरी आंखें नदी की खुश्क तह पर जिमी हुई थीं, ये जैसे वो मिट्टी से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो, जैसे जमीन की सांसों की रफ्तार को समझ रहा हो। हवा में नमी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा बोझ जरूर था, जैसे कुछ होने वाला हो या कुछ छन जाने वाला हो। बाबा ने अपने बोसीदा जाल को आहिस्ता आहिस्ता खोला। कभी वही जाल कहकहों, छोटी मछलियों और गुनगुनाती हुआ के संग बहती नदी में डालकर खुश हुआ करता था, लेकिन आज वो जाल सिर्फ इसकी वफा की अलामत बन चुका था। कल वो सिक्का मिला था, वापसी का वक्त करीब है। ये अल्फाज अब बाबा की सोच का हिस्सा बन चुके थे। इसी असना में नौजवान उमर, जो अब रोज बाबा के साथ आकर बैठता था, दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। इसकी सांस फूली हुई थी, आंखों में खौफ था। बाबा, उसने जोर से पुकारा, वो नदी बंद करने वाले हैं। सब लोग जमा हो गए हैं, आज जमीन खोदेंगे। बाबा हलीम ने बगैर चौंके आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, क्या अभी नहीं? क्या वो वक्त अभी नहीं आया? नौजवान रुका, फिर आहिस्ता से बोला, बाबा, आप रोक सकते हैं, अगर आप चाहें तो। कुछ कहीं? बाबा ने सिर्फ सर हिलाया, इनकार में नहीं बल्कि सब्र में। फिर इसने जाल नदी की बेजान मिट्टी पर डाल दिया, जैसे किसी कब्र पर चादर डाल दी जाती है। इसी लम्हे गांव की गलियों से शोर बुलंद होने लगा। लोग बेलचे, कुदालें और टोकरे लिए नदी की समत आ रहे थे। सरदार गुलाम दीन आगे आगे था, जिसने फैसला किया था कि नदी को खोदकर जमीन बना दी जाए ताकि फसल उगाई जा सके। ये नदी अब कुछ नहीं दे सकती, वो बुलंद आवाज से बोला। बाबा हलीम का ये ड्रामा काफी हो चुका, अब हमें नफा चाहिए, पानी नहीं। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने कहकहे लगाए और सब नदी की बेआवाज मिट्टी पर पांव मारने लगे। बाबा हलीम वहीं बैठा रहा। इसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो, लेकिन दुनिया से नहीं, किसी और जगह से। उमर ने सरदार के सामने आकर हाथ बांधे। बस एक दिन और दे दो, सिर्फ एक दिन। बाबा कुछ जानते हैं, वो जो कुछ नहीं कहते वो शायद सब कुछ कह चुके हैं। गुलाम दीन ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर तुम समझते हो कि यह सूखी नदी दुआ से भर जाएगी, तो तुम भी इतना ही पागल हो जितना ये। लेकिन बाबा ने आंखें खोली और पहली बार सीधे सरदार की आंखों में देखकर बस एक जुमला कहा, नदी खामोश है, मुर्दा नहीं। फिर इसने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें वही सिक्का था जिस पर अब रोशनी कुछ और लिखा जा चुका था। उमर ने हैरत से देखा, अल्फाज बदल चुके थे। रास्ता मिट्टी में है, पानी नहीं। सरदार रुक गया और गुस्से से बोला, क्या मतलब है इसका? बाबा ने जवाब नहीं दिया, बस जाल वापस उठाया और नदी के बीच इस जगह ले गया जहां कल हल्की लर्जिश हुई थी। फिर जमीन को आहिस्ता आहिस्ता खोदने लगा, नंगे हाथों से, खामोश, जैसे दुआ पढ़ता हुआ हो। उम्र भी साथ लग गया, फिर 3 और बच्चे, और फिर हैरत अंगेज तौर पर वही लोग जो मिट्टी खोदने आए थे, एक एक करके करीब आ गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने हाथ बढ़ाया। गुलाम दीन वहीं किनारे पर खड़ा देखता रहा और खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद जमीन से एक ठंडी नमी का एहसास होने लगा, फिर कीचड़, फिर एक हल्की सी रवानी, जैसे जमीन ने कुछ खोल दिया हो। उम्र की आंखें भर आईं। बाबा, ये क्या है? बाबा ने खामोशी से जाल फेंका और पहली बार जाल खाली नहीं लूटा। इसमें सिर्फ मछली नहीं थी, बल्कि पुराना कांसी का एक छोटा सा प्याला, जिस पर लिखा था, जो सब्र से मांगे वो बगैर पानी के भी पी लेता है। लोग साकित हो गए। पहली बार
नदी की मिट्टी से कुछ निकला था। नफा नहीं, निशान, रास्ता नहीं, राज। गुलाम दीन आहिस्ता आकर झुका और प्याले को देखने लगा। फिर इसने बाबा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हम सब अंधे थे और तुम? खामोश रोशनी। इसी रात गांव ने फैसला वापस ले लिया। नदी नहीं खोदी गई। बाबा हलीम अगली सुबह नदी किनारे बैठा और पहली बार हंसा। आवाज के बगैर, सिर्फ चेहरे पर वो सुकून था जो रब के राज जानने वालों को मिलता है। लेकिन नदी का राज अभी पूरा नहीं खुला था। नदी अब हल्की हल्की सरगोशियां करने लगी थी और जमीन के अंदर से किसी और बात की सदा आने लगी थी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें अब भी पहाड़ के पीछे छपी हुई थी, मगर नदी के किनारे एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। हवा में खुनकी थी, जमीन में नमी और सबसे बढ़कर दिलों में हल्की हल्की चमक। गुज़िश्ता शाम की खामोशी गांव वालों को अब भी याद थी, वो लम्हा जब नदी की खुश्क मिट्टी से वो पुराना प्याला निकला था और इस पर लिखा था, जो सब्र से मांगे वो बगैर पानी के भी पी लेता है। ये जुमला अब गांव की दीवारों पर, दिलों में और बच्चों की जबान पर गूंजने लगा था। बाबा हलीम हसन मामूल नदी किनारे आ बैठा था। इसके चेहरे पर एक नरमी थी, जैसे जमीन ने इसे थपकी दी हो। इसके हाथों में वही जाल था जो अब मिट्टी से ज्यादा राजों का अमीन बन चुका था। नौजवान उम्र भी इसके साथ था, मगर आज इसकी आंखों में कोई बचपना न था। वो रात की बातें सोच रहा था जब बाबा के जाल में मछली नहीं बल्कि एक पैगाम आया था। बाबा, उमर ने आहिस्ता से कहा, क्या ये नदी वाकई कुछ छुपा रही है? बाबा ने आहिस्ता सर हिलाया और जाल उठाकर नदी के बीच जा बैठा। अब नदी में हल्की सी नमी तो थी, मगर पानी अभी भी नहीं आया था। बाबा ने जाल इस मकाम पर डाला जहां कल से वो नमी उभर रही थी। एक गहरी सांस ली और जमीन को आंखें बंद करके सुना, जैसे वो नदी की धड़कन को महसूस कर रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। नदी के नीचे से कोई हल्की सी सरर, जैसे पानी मिट्टी में दबकर सांस ले रहा हो। उमर ने चौंक कर देखा। बाबा, वो नीचे से कुछ है। बाबा ने जाल खींचा। इस बार जाल में कोई मछली ना थी, बल्कि एक पुराना ताला जो आधा जंग आलूद था और उस पर धुंधले अल्फाज थे, दरवाजा पानी से नहीं, दुआ से खिलता है। उम्र की आंखों में हैरत की एक चमक थी। बाबा, ये क्या दरवाजा है? क्या नदी के नीचे कोई रास्ता है? बाबा हलीम ने खामोशी से ताला थामा और मिट्टी पर रख दिया। फिर आसमान की तरफ देखा और जेरे लब कुछ पढ़ने लगा, जैसे नदी से, अरब से कोई सवाल कर रहा हो। उसी वक्त गांव में हलचल हुई। कुछ बच्चे नदी के दूसरे किनारे से दौड़ते हुए आ रहे थे। बाबा, उमर भाई, नदी के पीछे वाले पहाड़ से पानी बह रहा है, मगर वो जमीन में जज्ब हो रहा है। उम्र और बाबा दोनों नदी के पीछे की समत दौड़े। पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा चश्मा फूट रहा था, मगर वो पानी नदी में बहने के बजाय जमीन में गायब हो रहा था, जैसे मिट्टी किसी खजाने को पुकार रही हो। बाबा, ये पानी क्यों जज्ब हो रहा है? बाबा ने मिट्टी को छुआ और कहा, क्योंकि जमीन को अभी तशनगी बाकी है। पानी आ रहा है, मगर अभी रास्ता बंद है। बाबा वापस नदी में आया। इस बार उसने वो ताला अपनी झोंपड़ी में ले जाकर एक पुराने संदूक में रखा, जिसे बरसों से किसी ने न खोला था। उम्र हैरान होकर बोला, ये संदूक आपके पास कब से है? बाबा आहिस्ता से बोला, जब मेरा बेटा चला गया था तब से। यह पहला मौका था कि बाबा ने किसी रिश्ते का जिक्र किया। उमर ने सांस रोकते हुए पूछा, बाबा, आपका बेटा? बाबा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरा बेटा इसी नदी में डूबा था। जब यह बहती थी तब मैं चीखा, पुकारा, रो दिया।
मगर फिर एक दिन मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा, नदी को इल्जाम ना दो, वो खुद भी गम में है। और तब से मैं खामोश हो गया, बस दुआ करने लगा कि जब नदी फिर चले तो वो मेरे बेटे की कब्र भी धो दे। उम्र की आंखें नम हो गईं। अब नदी का राज सिर्फ पानी का ना रहा, अब वो एक खामोश गम बन चुका था, जिसके नीचे एक बाप की दुआ, एक बेटे की मौत और एक राज दफन था। उसी रात गांव में तेज आंधी आई, बादल आए मगर बारिश ना हुई। लेकिन नदी की तह में एक हल्की सी लर्जिश हुई, जैसे जमीन ने करवट ली हो। सुबह जब बाबा नदी पर पहुंचा तो जमीन हल्की हल्की नम थी। बाबा ने जाल उठाया और बगैर कुछ कहे इस नम मिट्टी पर डाल दिया। जाल नीचे गया और इस बार कुछ भारी उभरा। ये कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा संदूक, जिस पर पुराना चमड़ा लिपटा था और अंदर से एक धीमी रोशनी छन रही थी। बाबा ने उमर को देखा और पहली बार कहा, नदी ने अपना पहला दरवाजा खोल दिया है। मगर राज अभी बाकी था। संदूक खोलने के लिए ताला अभी भी बंद था। सुबह के वक्त जब बाबा हलीम नदी किनारे पहुंचा तो उसकी चाल में वही सादगी थी, लेकिन इसके कदमों की चाप में एक इजाफी बोझ सा था। रात को नदी के अंदर से निकला छोटा सा संदूक अब उसके कंधे पर बंधा हुआ था, जैसे कोई बोसीदा राज उसके साथ चल रहा हो। उम्र उसके पीछे पीछे था और उसकी आंखें तजस्सुस से भरी हुई थीं। वो संदूक जो मिट्टी के नीचे दफन था और जिस पर धीमी सी रोशनी निकल रही थी, कभी तक बंद था। और वो पुराना जंग आलूद ताला जिस पर लिखा था, दरवाजा पानी से नहीं दुआ से खिलता है, अब भी इस पर लगा हुआ था। बाबा हलीम ने संदूक को आहिस्ता से नदी किनारे रखा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो एक पुराना चमड़े का थैला लेकर निकला। इस थैले में वो सिक्का था जो नदी से निकला था, वो प्याला जिस पर सब्र लिखा था, और अब ये ताला। ये सब यादगारें नदी की तरफ से भेजी हुई, जैसे किसी खामोश जबान के अल्फाज। उमर झिझकते हुए बोला, बाबा, क्या हम ये संदूक खोल सकते हैं? क्या वक्त आ गया है? बाबा ने उमर को देखा, जैसे दिल की गहराई से परख रहा हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, संदूक उस वक्त खिलेगा जब दिल माजी के साथ सुलह कर ले। उम्र कुछ ना समझा मगर खामोश हो गया। बाबा ने संदूक के ताला पर हाथ रखा, आंखें बंद की और एक तवील सांस ली। फिर पहली बार उसने उमर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सुनाया। मैंने मछेरे का काम अपने बाप से सीखा। हम 3 पुश्तों से इसी नदी पर रिस्क कमाते आए। मेरा बेटा रेहान मेरे जैसा नहीं था, वो ऊंची सोचता था, शहर जाना चाहता था। एक दिन हम दोनों नदी पर आए और किसी बात पर बहस हो गई। वो नाराज होकर नदी पार करने लगा और अचानक उसका पांव फिसल गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो नदी की गहराई में दफन हो गया। वो दिन, वो लम्हा मेरा सब कुछ ले गया। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की खामोशी आज लफ्ज बनकर निकल रही थी। लोगों ने कहा, यह नदी कातिल है। मैंने कहा, यह नदी गवाह है। तब से मैं रोज जाल डालता हूं, मछली के लिए नहीं, अपने बेटे की मुआफी के लिए। कभी वो लूट आए, कभी नदी बोले, कभी मेरा रब मुझे सुन ले। उम्र की आंखों से भी आंसू निकल आए। बाबा, और वो ख्वाब, वो नूरानी शख्स जो आपको दिखाई दिया। बाबा ने इस बात में सर हिलाया। हां, वो ख्वाब बरसों से मेरे साथ है। वो बुजुर्ग हर चंद माह बाद ख्वाब में आकर एक जुमला कहते हैं, जो अपने जख्म को सजदे में पेश कर दे, इसके लिए गार भी रोशनी बन जाता है। अब उमर खामोशी से वो ताला देख रहा था जो एक वक्त था माजी की कैद की अलामत था, लेकिन अब शायद मुआफी की कुंजी बन चुका था। तभी अचानक आसमान पर हल्के से बादल उभरने लगे।
कुआं में नमी महसूस हुई और नदी की तह से एक रोशनी सी झलकी। बाबा ने हाथ में ताला लिया और संदूक पर रखा। पहले ताला हल्का सा लर्जा, फिर खुद ब खुद क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। बाबा और उमर दोनों ने साकित होकर देखा। संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर क्या था? ना सोना, ना जवाहरात, बल्कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई पुरानी लकड़ी की तख्ती। इस पर हाथ से कंदा अल्फाज थे, निहायत खूबसूरत और नूरानी। तुम्हारा बेटा नदी का रिस्क नहीं, वो तुम्हारी दुआ का अक्स बन चुका है। तुमने जिस मिट्टी में सब्र दफन किया, वही अब तुम्हारे कदमों में बहार बनकर बहेगी। और नीचे एक नक्शा था जिसमें नदी की तह में एक और जगह का निशान लगा था। बाबा ने उम्र की तरफ देखा और होले से कहा, नदी ने हमें अगला राज बता दिया है। इसी वक्त नदी में पानी की एक लकीर तेजी से बहने लगी। ना बारिश, ना चश्मा, बस नदी की मिट्टी जैसे बरसों बाद फैसला कर चुकी हो। अब वक्त है वापस लौटने का, बहने का और राज सुनाने का। बाबा हलीम ने अपना जाल फिर से संभाला और उमर को लेकर नदी की इस निशानदेही की गई जगह की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो जानता था, अब जो सामने आएगा वो सिर्फ नदी का राज नहीं होगा, बल्कि इसके अपने दिल की वो गिरा भी खिलेगी जो बरसों से खामोशी में बंद थी। रात का वक्त था। नदी के किनारे छोटी छोटी जुगनुओं की रोशनी थी और आसमान पर सितारों का बेआवाज झुरमट। बाबा हलीम अपने झोंपड़ी के बाहर बैठा था और उम्र उसके साथ। संदूक से निकले राज और लकड़ी की तख्ती पर बने इस नक्शे ने इन दोनों को एक नई जस्तजू में डाल दिया था। अब नदी का राज सिर्फ बाबा हलीम की यादों और दुआओं तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि एक नया दरवाजा, एक नई समत और एक मुकद्दस आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। तख्ती पर जो मकाम दिखाया गया था वो नदी के इस किनारे पर था जहां कभी दरिया का पाट चौड़ा हुआ करता था, मगर बरसों की खुश्क साली के बाद वो जगह झाड़ियों, टूटे पत्थरों और बंजर जमीन में बदल चुकी थी। अब वहां सिर्फ धूल उड़ती थी और यादें सांस लेती थीं। बाबा हलीम अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उठा। आज उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में रोशनी भी पहले से ज्यादा थी। उसने अपना जाल कांधे पर रखा और उम्र के साथ इस निशान ज़दा जगह की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उमर खामोश था, मगर उसका दिल धड़क रहा था। एक अनजानी घबराहट, एक पुरजोश दुआ और एक ना समझ आने वाली कशिश उसे इस नुक्ते की तरफ खींच रही थी। बाबा हलीम ने नदी के इस किनारे पर पहुंचकर कुछ देर खामोशी से खड़ा होकर जमीन को देखा। यह वही मकाम था जहां कभी इसने अपने बेटे रेहान को तैरता देखा था, जिंदा, बेफिक्र और चमकते चेहरे के साथ। ये जगह, बाबा आहिस्ता से बोला, मेरे ख्वाबों में बार बार आती है, जैसे कोई पुकार रहा हो लेकिन जबान नहीं हिलती। उमर ने फौरन जमीन की तरफ इशारा किया, बाबा, यहां कुछ हल रहा है। बाबा ने जमीन पर हाथ रखा और वाकई मिट्टी हल्की हल्की नब्ज की तरह धड़क रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। ना खौफ, ना जलजला, बल्कि जिंदगी। बाबा हलीम ने जाल जमीन पर फैलाया और दोनों हाथों से जमीन खोदने लगा। इस बार वो मछली नहीं ढूंढ रहा था, वो अपना माजी, अपनी दुआ और शायद अपना बेटा तलाश कर रहा था। कई घंटे गुजर गए, फिर अचानक उम्र की उंगलियों को एक सख्त चीज महसूस हुई। बाबा, कुछ है यहां। वो दोनों झुके, मिट्टी साफ की और वहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी जाहिर हुई, जैसे जमीन के अंदर कोई गार हो, कोई तहखाना या शायद नदी का असल सीना। बाबा ने उम्र की तरफ देखा और कहा, अगर तुम डरते हो तो यहीं रुक जाना। उमर ने सर नफी में हिलाया, जहां अब जा रहे हैं मैं भी चिल्लूंगा। दोनों नीचे उतरे। गार नम थी मगर खुशबूदार।
जैसे बरसों से किसी ने वहां इबादत की हो, आंसू छुपाए हों। गार के बीच एक गोल दायरा था और इस दायरे के अंदर एक छोटा सा पत्थर का हौज, जिसमें ना कोई पानी था ना मछली, बल्कि एक पुराना जला हुआ कागज और कागज पर लिखे अल्फाज, वो जो खामोशी में वफा करे इसे नदी राज दे देती है। बाबा ने वो कागज हाथ में लिया और जैसे ही इसने इसे पढ़ा, गार की दीवारों से हल्की रोशनी फूटने लगी। पहली बार उमर ने बाबा के चेहरे पर वो रोशनी देखी जो अल्फाज से बाहर होती है, रूह की गवाही। फिर गार के आखिर में एक पुतली सी नहर का सरा नजर आया और उसमें हल्की हल्की रवानी। बाबा हलीम तेजी से इस नहर के करीब पहुंचा और जब उसने अपना जाल इसमें डाला, पानी का पहला कतरा इस पर गिरा। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, या रब, अगर ये मेरे बेटे का फिदिया था तो अब उसे अपनी रहमत में ले ले, और अगर ये तेरी तरफ से एक अमानत थी तो हमने लूटा दी। नदी ने पहली बार बोलने की कोशिश की। दीवारों से टकराती पानी की सरगोशियां अब सिर्फ आवाज न थीं, वो पैगाम बन चुकी थीं। इसी लम्हे गार के अंदर एक और पैगाम नुमाया हो गया। पत्थर पर उभरते अल्फाज, पानी की इब्तिदा खामोशी से होती है और जो इस खामोशी को सुन ले वो नजात पा लेता है। बाबा हलीम ने अपना जाल वापस खींचा और जाल में ना मछली थी ना खजाना, बल्कि एक छोटा सा कागज का कबूतर, जिस पर लिखा था, नदी का आखिरी राज कल जाहिर होगा। बाबा वो कबूतर सीने से लगाकर खामोश बैठ गया। उम्र की आंखें भीग गईं। वो जानता था कल कुछ अजीम होने वाला है। नदी अब सोई हुई नहीं थी, अब वो जाग गई थी। नदी के अंदर वो रात खामोश थी, मगर ऐसी खामोशी नहीं जो खौफनाक हो, बल्कि वो खामोशी जो किसी बड़ी बात के आने से पहले छा जाती है। बाबा हलीम और उम्र इस गार से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही नूरानी एहसास बाकी था जो नदी ने उनके दिल में उतारा था। गार में से निकला हुआ वो कागज का कबूतर अब बाबा के पास था, जिस पर लिखा था, नदी का आखिरी राज कल जाहिर होगा। सुबह होते ही पूरा गांव बाबा हलीम के गिर्द जमा हो गया। वही लोग जो उसे सालों से पागल समझते थे, अब इसके हर लफ्ज को तज़ीम से सुनने लगे थे। सरदार गुलाम दीन भी हाजिर था, खामोश, शर्मिंदा और हैरान। बाबा हलीम ने आज पहली बार नदी की तरफ रुख करके बुलंद आवाज में बात की। ए नदी, अगर तो गवाह है तो आज गवाही दे दे, अगर तो खजाना है तो आज अपने राज खोल दे, और अगर तो दुआ का दरिया है तो आज बह जा, ताकि हम सब तेरी रोशनी से धुल जाएं। फिर इसने वो कबूतर नदी की मिट्टी में दफन कर दिया और जाल उठाकर नदी के मरकज में जा खड़ा हुआ, जहां पानी की हल्की रवानी रात भर आती रही थी। इस बार जाल पानी में नहीं, बल्कि एक खास मकाम पर जमीन में उतारा गया। बाबा की आंखें बंद थीं, होंठों पर दुआएं और दिल में एक ही आवाज, ए रब, वो दे दे जो तूने वदा किया था। फिर एक लम्हा, एक लर्जिश, और नदी की जमीन ने खुद को हटाना शुरू कर दिया, जैसे रब ने इसे इज़्न दिया हो। जमीन के अंदर से पानी का एक चश्मा फूटा, जोरदार मगर नर्म, ताकतवर मगर परसुकून। नदी ने अपना असल जाहिर कर दिया। नदी अब बहने लगी थी, मिट्टी से गुजरकर, लोगों के कदमों में आकर, और इन दिलों को छूकर जो बरसों से सोए हुए थे। पूरा गांव जश्न के लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ लोग सजदे में गिर गए, कुछ आंखों से बारिश बरसा बैठे। बाबा हलीम वहीं बैठा रहा, चेहरे पर रोशनी मगर आंखें बंद थीं। उमर दौड़ा और उसके करीब आया। बाबा, नदी चल पड़ी, पानी आ गया, ये सब हो गया।
بابا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور ایک بار آسمان کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا، میری دعا اور میری خاموشی، آج سب کچھ بہہ گیا۔ پھر اس نے اپنا جال دوبارہ پانی میں ڈالا۔ جب وہ جال باہر نکالا تو اس میں صرف ایک چیز تھی، ریحان کا پرانا چمڑے کا کڑا جو کبھی وہ پہنتا تھا۔ بابا نے وہ کڑا سینے سے لگا کر مسکرا کر آنکھیں بند کر لے۔ وہ اب تھک چکا تھا مگر پرسکون۔ شام ہونے تک بابا کی روح رب کے حضور جا چکی تھی، وہی ندی کے کنارے جہاں اس نے عمر بھر دعا کی تھی۔ عمر نے اسے ندی کے پاس دفن کیا اور قبر کے سرہانے وہی سکہ، وہی پیالہ اور وہی تختی رکھ دی۔ پھر تختی پر لکھی یہ بات سب کو بلند آواز میں سنائی، وہ جو خاموشی میں جیتا ہے، ندی اس کے راز کھول دیتی ہے۔ گاؤں کے بچے ہر سال اس دن ندی کنارے آ کر جال ڈال کر دعا کرتے ہیں، نہ مچھلی کے لیے، نہ پانی کے لیے، بلکہ یقین کے لیے۔ اور اب وہ جگہ صرف ندی نہیں بلکہ اب بابا حلیم کا راز کہلاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ روحانی، سبق آموز اور دل کو چھونے والی کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا لمحہ سب سے زیادہ جذباتی لگا، اور سبسکرائب کریں ایم اے سٹوری سینٹر کو، جہاں ہم آپ کے دلوں کو جگانے والی کہانیاں لاتے ہیں، وہ بھی بغیر چیخ و پکار۔ خاموشی میں روشنی کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اگلی دعا آپ تک فوراً پہنچے۔ ایم اے سٹوری سینٹر، جہاں خاموش کہانیاں دل سے بولتی ہیں۔